मैं वेलकम करना चाहूंगा डॉक्टर गुलशन कुमार। ओवर टू यू सर। स्वागत है आपका सामी की दुनिया में। Thank you very much, Dr. Anandji, for introducing me in such a nice way. I'm a humble person. You have spoken a lot about me. Thank you very much. Honorable Mansingh Ji Nayak, CEO, Chairman Club, and Anand sir, thank you very much for giving me this opportunity to speak on this national seminar and share my experiences of life as well as my stay here in Sami Direct and some other multinational companies. As you have already said that we should set aside everything else today. All our worries, all our anxieties, all our diversions, and we should be here. My personal thinking is that if we listen to someone very attentively, even that can change our life. Even that can bring about a paradigmatic shift in our life. So I will once again request all of you to remain in the listening mode as long as I am speaking. I'll not take more than 30 to 35 minutes. 30 minutes I have been allowed. But if I trespass the limit just by 2 to 3 minutes, I hope my host will allow me that. Straightway, I'll welcome you all here, the viewers who are here with us today. My topic is the power of dreams and network marketing. This is a different kind of a business. This is not a business in which we make investment and start our business. Of course, we invest our time and our energy, but we don't have to invest a huge amount of finance here in this business. This is not a traditional business. And everything in life starts with dream. It is the power of dream which drives us, which takes us forward in life. हम आगे बढ़ते हैं जीवन में तो ड्रीम के सहारे। एक पेशेंट जो अस्पताल में लेटा हुआ है, कैंसर से पीड़ित है, केमोथेरेपी ले रहा है, उसका भी एक ड्रीम है, सपना है जो उसे जीवित रखता है। जीवन में कोई भी छोटा सा छोटा काम हो, कुछ भी हो, हमें किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, वो भी एक ड्रीम है। अगर ड्रीम ना हो तो वो भी पूरा नहीं होता। लेकिन इससे बड़े ड्रीम तभी पूरे होते हैं अगर हमारे वो अंदर घर कर गए हैं। If we have internalized them, if they have already become a passion with us, if they are already in our blood. There is a famous poet called Pash. He is a Urdu poet. He has written, आदमी कम खाने से नहीं मरता, आदमी रोज दफ्तर जाने से नहीं मरता, आदमी मरता है तो जब उसके सपने मर जाते हैं तब मरता है। So you die when your dreams die. You are not a living person then. There is another poet who has said, आए हैं सो जाएंगे, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर. Everybody has to leave this world. He may be a king or a pauper. कुछ सिंहासन चढ़ चले, कुछ बांधे जंजीर. Why is it that some people live in palaces? They are enthroned as kings. सिंहासन पे चढ़ जाते हो, और कुछ लोग जो हैं
वो गरीबी में मर जाते हैं. With their dreams dead, with their mind suffering from so many ailments, so many diseases, their body suffering from so many diseases. तो कुछ सिंहासन चढ़ चले, कुछ बांधे जंजीर. What is the difference? Wherein lies the difference? The difference lies in the power of the dream. Why a man takes up the throne? Why a man rules? Why a man becomes a millionaire, a billionaire, and leaves his footprints on the sands of time and is remembered by the progeny that he has done something great. It is the power of dream. Let me tell you the story of the greatest country of the world today, the most powerful, the richest country of the world today. Here you can see on the slide the American dream, the most powerful country born out of a dream. I hope many of you might be knowing the history of America, which is called the United States of America, having about 52 states today. When it was born, it had only 13 states, केवल 13 states. 1492 में कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस ने, स्पेन का रहने वाला था, वो नाविक था, सेलर. उसने अपने किंग से कहा, मुझे 3 जहाज दे दो, 300 नाविक दे दो और 3 महीने का समय दे दो. You just give me 3 months time, 3 ships, and I'll discover India. India was at that time known in the world as the richest country of the world. There were many popular stories about India. ये कहा जाता था कि भारत में जो बच्चे हैं वो मोतियों से खेलते हैं. तो उसने कहा, मैं इतना धन लेके आऊंगा कि स्पेन में 3 वर्ष तक कोई टैक्स नहीं लगाना पड़ेगा. लेकिन राजा नहीं मान रहा था, तो उसने क्वीन को परसुएट किया. तो क्वीन ने राजा को मना लिया और उसको 3 महीने, 3 शिप्स, 300 नाविक मिल गए और उसने अपनी यात्रा शुरू की इंडिया को खोजने की. बाकी सब इतिहास है, हम जानते हैं आगे क्या हुआ. कि अमेरिका की बजाय वो गलती से कहां पहुंच गया, सॉरी, इंडिया की बजाय गलती से कहां पहुंच गया, अमेरिका. लेकिन वो भी एक फॉर्चुनेट बात थी. अमेरिका डिस्कवर हुआ, ट्राइबल लोग रहते थे, वहां से यूरोप के लोगों को निकाला गया, वहां के बसने शुरू हो गए वो. ये बात है 16th 15th सेंचुरी की, 16th सेंचुरी की. तब से यूरोपियन लोग वहां बसने लगे और धीरे धीरे बस्तियां बनने लगी और धीरे धीरे 13 स्टेट्स बन गई वहां पे. लेकिन इन 13 स्टेट्स ने मिलकर एक दिन ये फैसला लिया कि हम एक कंट्री बनेंगे. They dreamt a dream that we will emerge as a nation, an independent nation. Earlier, they had been slaves of England. अब्राहम लिंकन जैसे नेता मिले और वो देश आजाद हुआ. कैसे बॉर्न हुआ, कैसे पैदा हुआ वो देश? कुछ लोगों ने ड्रीम लिया, सपना लिया. उनका ना कोई इतिहास, ना कोई एक कल्चर जो उनको बांधने वाला था. केवल एक चीज ने बांधा उनको, ड्रीम ने, पावर ऑफ ड्रीम. और आज हम देखते हैं कि आज वो कंट्री दुनिया का रिचेस्ट कंट्री, द बॉस ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया का 40% धन अमेरिका के पास है. उसके बाद ये अब्राहम लिंकन ने, सॉरी, जॉर्ज वाशिंगटन ने उनको आजादी दिलवाई. उसके बाद वहां स्लेवरी थी, गुलामी थी. एक और आदमी ने ड्रीम लिया.
कि यहां से गुलामी को खत्म करना है। काले लोग, ब्लैक्स, जिनको खरीद के लाया जाता था अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से, वो गुलाम थे, बहुत बुरी हालत में थे। तो उसने 1861 में जंग लड़ी, वहां पे सिविल वॉर कहा जाता है जिसे, और 1861 में उसने वहां को स्लेवरी से अबॉलिश की। स्लेवरी वाज डिक्लेयर्ड एज इलीगल, अनलॉफुल। धीरे 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 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका इमर्ज टू बी द मोस्ट पावरफुल एंड द रिचेस्ट कंट्री। व्हाट इज ड्राइविंग अमेरिका टू सच ग्रेट हाइट्स? डू वी एवर थिंक? क्या हम सोचते हैं कभी? द पावर ऑफ द ड्रीम। जॉर्ज वाशिंगटन जैसे लोग वहां आए, अब्राहम लिंकन जैसे लोग आए। आप किसी भी चीज की इन्वेंशन देख लो, आज हम इतनी कंफर्टेबल लाइफ में है तो किसी ने कुछ ड्रीम लिया। ये मैं कंप्यूटर यूज कर रहा हूं अभी, इंटरनेट यूज हो रहा है, किसी ने ड्रीम लिया तो आया, और आज हम इस तरह बैठ के ये सेमिनार कर रहे हैं। अगर ड्रीम की ताकत खत्म हो जाए तो दुनिया खत्म हो जाए। हम इस तरह बैठ के आपस में बातचीत ना कर रहे हो। ये एयर कंडीशनर चल रहा है जिस रूम में मैं बैठा हूं, इतना कंफर्टेबल बैठा हूं। किसी ने ड्रीम लिया? एक छोटा सा मकान बनाना, उसके लिए भी ड्रीम लेना पड़ता है थोड़ा सा। राइट ब्रदर्स साइकिल रिपेयर किया करते थे, ड्रीम लिया उड़ने का। आपने ये बातें सुनी होगी, लेकिन कहते हैं कि बार बार जगाना पड़ता है। कांस्टेंट हैमरिंग चेंजेस अस। एरोप्लेन का आविष्कार हुआ, उड़ना शुरू कर दिया इंसान ने। जेम्स वॉट्स और स्टीवनसन ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया, गाड़ियां चल रही हैं। आज 500 किलोमीटर की रफ्तार से बुलेट ट्रेन चल रही है। हमारे अपने देश में आपको ऐसी एग्जाम्पल्स मिलेंगी, ऐसी उदाहरण मिलेंगी, जो लोग हैंडीकैप्ड हो गए थे, ऐसे लग रहा था कि कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ पॉसिबल ही नहीं है। उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि द वर्ड इम्पॉसिबल एग्जिस्ट ओनली इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। ये नेपोलियन ने कहा था, जो आज तक का सबसे बड़ा सेनापति हुआ फ्रांस का। तो ड्रीम के बिना जो है वो कुछ भी आगे नहीं चलता। जैसे एक हमारे पोएट हुए हैं, अमेरिकन पोएट, उनकी कुछ पंक्तियां मैं जरूर सुनाता हूं। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, जंगल बहुत घने हैं, सुंदर हैं। बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप, पर मुझे कुछ वायदे निभाने, मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ड्रीम के बाद दूसरा नंबर रिस्पॉन्सिबिलिटी का आता है, उसके बाद मैं अगली स्लाइड पे जाऊंगा अभी। But I have promises to keep and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. ड्रीम्स ऐसे ही नहीं पूरे हुआ। कुछ जर्नी करनी पड़ती है, कुछ यात्रा करनी पड़ती है, कुछ एफर्ट करनी पड़ती है। ड्रीम को दिल में बसाना पड़ता है। ड्रीम और आप में कुछ अंतर ना रह जाए, ऐसा बनना पड़ता है। केवल ड्रीम ही नजर आए तभी हम ऊंचाइयों को छूते हैं। और इस बिजनेस में तो केवल ड्रीम की ही पावर है जो आपको खींचती है, क्योंकि पहले तो ऐसे लगता है कि इस बिजनेस में कुछ हो ही नहीं रहा। हम प्लान दिखाए जा रहे हैं, प्लान दिखाए जा रहे हैं, प्लान दिखाए जा रहे हैं, नो रिजल्ट इज कमिंग। इफ एट ऑल रिजल्ट इज कमिंग, इट इज मच बिलो आवर एक्सपेक्टेशन। So this business is like Chinese bamboo.
आपने चाइनीज बैम्बू का सुना होगा, कहते हैं कि चाइनीज बैम्बू की एक विशेषता है कि पहले 6 महीने उसका जो बीज है वो जमीन के अंदर ही रहता है, बाहर कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन 6 महीने साल के बाद जब वो बढ़ने लगता है तो एकदम से बढ़ता है। कहते हैं उसकी हाइट को बढ़ते हुए देखा जा सकता है। तो इसी तरह इस बिजनेस में होता है। पहले 6 महीने साल आप ये सोच के चलो कि बस मेहनत है, बीज बोएंगे, फल बाद में मिलेगा, पूरा वृक्ष बाद में देखेंगे और बड़ी जल्दी मिलेगा भी। ज्यादा देर इंतजार की जरूरत नहीं है, 2 से 5 साल का समय बताते हैं। इट इज द पावर ऑफ द ड्रीम which drives this business. कहते हैं कि whatever your mind conceives, it can achieve. If it is to be, it is up to me. If it is to be, it is up to my dream. अगर मेरे अंदर ड्रीम है तो सब कुछ हो सकता है। I want to give you 1 or 2 examples. सुधा चंद्रन का नाम सुना होगा, उसके ऊपर फिल्म बनी थी नाचे मयूरी। हैंडीकैप्ड होगी, आर्टिफिशियल टांग थी उसकी, लेकिन वो कथक नृत्य बनी, नृत्यांगना, नाम कमाया विदेशों में भी उसने। अभी थोड़ी देर पहले एक हैंडीकैप्ड लड़की ने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया। शी स्केल्ड द माउंट एवरेस्ट डिस्पाइट हर हैंडीकैप। हेलन केलर का नाम सुना होगा, डम्ब, डेफ, म्यूट, गूंगी, बहरी, देख नहीं सकती थी, लेकिन उसने किस चीज का आविष्कार कर दिया, क्या ड्रीम लिया कि मैं अंधों के लिए कुछ कर जाऊंगी। ब्रेल लैंग्वेज का उसने आविष्कार कर दिया। विल्मा रुडोल्फ, अमेरिका का स्प्रिंट रनर, 3 गोल्ड मेडल ले लिए, बचपन से ही पीड़ित था पोलियो से, रोज जाता था, भागने का प्रयास करता था, नहीं भागा जाता था, गिरता था, फिर उठता था, फिर भागता था, लेकिन ड्रीम पक्का था, ड्रीम अंदर गया हुआ था, इंटरनलाइज था, और दुनिया में नाम रोशन कर गया। ओलंपिक्स में 3 गोल्ड मेडल, रिले रेस में गोल्ड मेडल, 100 मीटर स्प्रिंट में, 200 मीटर स्प्रिंट में गोल्ड मेडल। कितने नाम है, एक नाम नहीं है, एक उदाहरण नहीं है। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो किसी को भी प्रेरणा बना सकते हैं। यहीं पे है हमारे मान सिंह जी नायक हैं, आनंद जी बैठे हुए अचीवर हैं, किस तरह स्टेज पे पहुंचे ड्रीम से। तो इसलिए पहली बात जो मैं कहना चाहता हूं कि इट इज द पावर ऑफ द ड्रीम विच ड्राइव्स यू इन दिस बिजनेस। इफ यू डोंट हैव ए ड्रीम टुडे, डोंट डिले इट। ये ऐसे वैसे बिजनेस नहीं होने वाला, बीच में थक जाओगे, रुक जाओगे, ब्रेक लगा लोगे, आपको लगेगा कार का टायर पंक्चर हो गया शायद। कुछ नहीं, ऐसी बात नहीं, केवल एक ड्रीम होना चाहिए। एंड यू सिट ऑन द ड्राइविंग सीट, डोंट सिट ऑन द बैक सीट, टेक द लीड देन। अब हमारे ड्रीम्स जो हैं वो बनते क्यों नहीं, पूरे क्यों नहीं होते?
कुछ तो बनाते ही नहीं, सोए सोए ही मर जाते हैं। सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है। आते हैं, खाते हैं, पीते हैं और चले जाते हैं। मैं किसी जगह पे पढ़ रहा था कि 95% लोग इस दुनिया में आते हैं और उनको ये पता ही नहीं होता कि किस लिए आए हैं, क्या करना है, जीवन ऐसे ही बिता के चले जाते हैं। केवल 4% लोगों को कुछ वेग सा आइडिया होता है अपनी लाइफ के पर्पस का। हमने क्या करना है जीवन में, क्या पाना है, कहां पहुंचना है। मैं केवल फाइनेंशियल अचीवमेंट की बात नहीं कर रहा। आपका ड्रीम कुछ भी हो सकता है। आपका ड्रीम स्पिरिचुअल अचीवमेंट भी हो सकता है। आप अध्यात्म के क्षेत्र में भी उन्नति करना चाहते हो, तब भी ड्रीम होना चाहिए। आप समाज सेवा करना चाहते हो, एनजीओ रन करना चाहते हो, तब भी ड्रीम होना चाहिए। तो अपने आप को जानना पड़ेगा, हम क्या है। अगर हम कभी दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे गए होंगे, आप तो दिल्ली के रहने वाले हैं, मैं तो कभी कभी जाता हूँ वहां पे, छोटे शहर में रहता हूँ, लेकिन जब भी जाता हूँ तो मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि कैसे लोग भाग रहे हैं, चले ही जा रहे हैं, आंखें खाली हैं उनकी, आंखों में कुछ दिखाई नहीं देता। ड्रीमी आईज बट विदाउट प्रॉपर ड्रीम्स। ऐसे लगता है जैसे क्लोज़िपाम की कोई टैबलेट खाई हुई है, नशे में है और इधर उधर घूमे जा रहे हैं, भाग रहे हैं, कोई पर्पज नहीं लाइफ का। तो 4% लोग ऐसे हैं जिनको कुछ वेग आइडिया होता है, धुंधला सा, कि हम जीवन में क्यों आए हैं, यहां क्या करने। और एक से भी बहुत कम मात्रा में ऐसे लोग होते हैं, कम गिनती में लोग होते हैं जिनको क्लियर पता होता है कि दिस इज आवर ड्रीम, दिस इज व्हाट वी हैव कम फॉर इन हियर इन दिस लाइफ, दैट इज व्हाई वी आर बोर्न हियर एंड दैट इज व्हाट वी वांट टू अचीव एंड दे अचीव इट। वो सिंहासन पे चढ़ के जाते हैं। शुरू में मैंने बोला था ना, कुछ सिंहासन चढ़ चले, कुछ बांधे जंजीर। अब इसमें रुकावट क्या है? हमारी टॉक्सिक थिंकिंग, नकारात्मक विचार, हमारे ईर्ष्या, द्वेष, अच्छे संबंधों का ना होना, हमारे डेड रूट पैटर्न्स, हमारी कुछ आदतें, मान लो उसमें पोस्टपोनमेंट है। सबसे बुरी आदत पोस्टपोनमेंट की है, जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। लाइफ कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, वो कल करते करते सारा जीवन चला जाता है। मुझे एक व्यक्ति की बात याद आती है। वो कहता है, अभी मैं तो तभी जागता हूं जब सुबह ना 11 बजे बार खुल जाती है। बार में जब पहला पैग मेरे अंदर चला जाता है, तब मुझे जाग, तब मुझे पता लगता है मैं होश में हूं। अरे होश ही गवा दी है। ये पैटर्न्स बने हुए हैं, डेड पैटर्न्स। किसी ने छोटी सी बात कह दी, उसकी रिएक्शन सारी जिंदगी चलती रहती है। अरे उसको फॉरगेट करो, भूलो, आगे बढ़ो, अपने सपने को देखो। लेकिन ये पैटर्न्स ने हमें पकड़ के रखा हुआ है, जकड़ के रखा हुआ है। आप रोज के जीवन को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे कितना समय हम इसमें व्यर्थ गवाते हैं, इस नकारात्मक सोच में, अपनी हैबिट को तोड़ नहीं पाते। इनके कारण हम डेड हो जाते हैं, लाइफलेस हो जाते हैं, जीवन का आनंद खत्म हो जाता है, अपनी इच्छा से कुछ करना चाहते हैं, नहीं कर पाते।
लेकिन देयर इज ए गुड न्यूज। गुड न्यूज क्या है कि ये सारे पैटर्न्स, ये सारी नकारात्मक सोच, ये ईर्ष्या, ये द्वेष, ये सब डेड हैं, मरे हुए सांप हैं जो गले में लटकाए हुए हैं। इनके अंदर कोई शक्ति नहीं है, अपनी कोई शक्ति नहीं है इनकी। इनको ऊर्जा हम देते हैं रोज। सुबह उठ के वही हैबिट से अगर उठेंगे, रात को सोचा है 5 बजे उठ के योगा करेंगे तो नहीं करते, तो हम ही उसको सींच रहे हैं। वी आर गिविंग लाइफ टू दैट पैटर्न। इसीलिए स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता। स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो धन भी नहीं आएगा। तो पहली गुड न्यूज क्या है कि ऑल दीज पैटर्न्स आर डेड, ओनली वी गिव लाइफ टू देम एवरी डे। एक ही चीज हमारे अंदर जीवित है, दैट इज आवर विल पावर। आवर विल इज द ओनली लिविंग एनर्जी। और अगर ये विल पावर हमारे अंदर अलाइव है, इसको जीवित कर लेते हैं, तो ये रूप पैटर्न खत्म होने लगते हैं। एंड वी आर अगेन इन द ड्राइवर सीट ऑफ आवर डेस्टिनी। वी कैन चेंज आवर डेस्टिनी, वी कैन गिव इट एनी डायरेक्शन। और कौन सी चीजें हैं जो हमें रोकती हैं? आगे मैंने स्लाइड में है हमारे सेल्फ डाउट। हमारे अंदर शक आता है, हम कर नहीं पाएंगे, अरे ये काम कहां से होगा हमसे। इतने इतने बड़े सपने दिखा रहे हैं, हर महीने 3 लाख रुपया कमाओगे, 5 लाख रुपया कमाओगे। जब चेयरमैन क्लब में चले जाओगे तो पता नहीं इनकम कितनी हो जाएगी। ये फाल्स है सब, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो सेल्फ डाउट है, ये हमारे जो सेल्फ डाउट है, ये उन चीजों के बारे में नहीं जो बिल्कुल अनअटेनेबल है। अगर मैं ये सोचता हूं कि सेल्फ डाउट जो है मेरे, मैं चाहता हूं कि मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाऊं, वो मेरा ड्रीम नहीं है, उसके बारे में सेल्फ डाउट नहीं है मेरे को। जो चीज मैं कर सकता हूं फिर भी नहीं करता। अगर मान लो मैं आज 2 लाख रुपए कमा रहा हूं और मैं सोचता हूं मैं 3 लाख शुरू कर दूंगा, इसके बारे में भी सेल्फ डाउट है मुझे। ये हो सकता है लेकिन पॉसिबल है। रोज देखता हूं मेरे पड़ोसी का घर मेरे से बड़ा है, बना सकता हूं ऐसा घर, इसके बारे में सेल्फ डाउट आता है। ये सेल्फ डाउट है। सेल्फ डाउट इसके बारे में नहीं कि मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। What is achievable? I am having doubts about that even. What I can do? ये सेल्फ डाउट कहां ले जाता है हमें? धीरे धीरे हम ये सोचने लगते हैं मैं इसके योग्य ही नहीं, भगवान ने मेरी किस्मत ही ऐसी लिखी, मेरे कर्मों में नहीं है, बड़ा घर मेरे कर्म में नहीं है। इसे कहते हैं सेल्फ डिनायल। माय नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्फ डिनायल। अपने आप को ही डिनाई करते हैं हम, अपने कॉन्फिडेंस को, अपने अस्तित्व को, योर ओन एग्जिस्टेंस। और जब ये सेल्फ डिनायल और बढ़ जाता है तो सेल्फ हेट्रेड बन जाता है। सेल्फ डिनायल मैंने नीचे लिखा है, सेल्फ डिनायल शुड बी कम एट नंबर 2, सेल्फ हेट्रेड at number 3. You start hating yourself. You start thinking that your life is worthless. And you also entertain thoughts of committing suicide. This is the extreme form of depression. Self-doubt leading to self-denial. I am not worthy at all. God has not given me any qualities. God has not given me any virtues, any skills. मेरे अंदर कोई कुशलता ही नहीं है।
मैं कुछ कर ही नहीं सकता, and that leading to self-hatred, and that completes the story. You end your life. But all this can be overcome. Only one thing is alive in you. Keep that alive. It is always alive, it never dies. And what is it? Your willpower. Will is the only living energy. That is the third point on the slide. Now, what we have to do is, the next point is yoga karmasu kaushalam. योग का अभ्यास सभी करते हैं. योग के बारे में योग की पहली डेफिनेशन जो है वो ये है कि योग करने से कर्म में कुशलता आती है. Your action becomes perfect. No, I will interpret it differently. Yoga brings expansion in your action. It brings authenticity in your action. You must be authentic. Authenticity means if you are having a walk for 2 kilometers today, you should walk 3 kilometers tomorrow, 4 kilometers the next day. Some people think, we'll have to do continuous work, we'll never get rest. When will we rest? No. It's alive. Next, focus. If you have the dream, you should keep your focus on it. दाएं बाएं नहीं देखना, फिर इधर उधर नहीं देखना. You have to chase your dream with single-minded concentration. ड्रीम को पकड़ लेना है. मेरे पास एक कवि की कविताएं हैं. आपको लोग कहेंगे कि ये क्या पकड़ लिया, हर समय पागलों की तरह फाइनेंसिस के पीछे भाग रहे हो, मटेरियलिस्टिक हो गए हो, सभी संबंधों को भूले जा रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? लेकिन आपने उनकी तरफ नहीं देखना, आपने अपने ड्रीम की तरफ देखना. युवाओं को, आप में से कई यंग बैठे होंगे इस बिजनेस में, तो उनको संबोधित करके कुछ पंक्तियां हैं. युग के युवा मत देख दाएं और बाएं और पीछे, न मत झांक बगले, न अपनी आंख कर नीचे. अगर कुछ देखना है, देख अपने वे मजबूत कंधे, जिन्हें देता है निमंत्रण सामने तेरे बड़ा युग का जुआ. आने वाला फ्यूचर तुम्हें देख रहा है. यू कैन अचीव एनीथिंग. अपने मजबूत कंधों को देखो, करते जाओ, बढ़ते जाओ. हमारे इस बिजनेस में एंटरटेनमेंट और हार्डवर्क में कोई डिफरेंस नहीं है. हार्डवर्क ही एंटरटेनमेंट है, सब कुछ साथ साथ ही हो जाता है. तो इग्नोर व्हाट पीपल से. डोंट पे अटेंशन टू दैट. अगर आप उसको ध्यान लगे तो आपका ड्रीम छूट जाएगा और बिजनेस खत्म हो जाएगा. और इस ड्रीम को फिर गोल्स में, छोटे छोटे गोल्स में बांटो. जैसे हम बताते हैं, कई सेमिनार्स में बताया है, इस मंथ का ये गोल है, इस ईयर का ये गोल है. इमेजिन करो, विजन करो कि 2022 में मैं ऑस्ट्रेलिया के उस नदी के किनारे बैठ के रेस्टोरेंट में चाय पी रहा हूं. ऐसे गोल्स बनाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ. इसकी पावर क्या है इस बिजनेस की? कमाल की पावर है. क्या कर सकता है इसकी बिजनेस? एक बार मेरी
खुदा से मुलाकात हुई। एक बार मेरी खुदा से मुलाकात हुई, यूं ही बस बैठे कुछ थोड़ी सी बात हुई। मैंने उससे पूछा ये बिजनेस कैसा है? उसने कहा मत छोड़ना भाई, ये बिल्कुल मेरे जैसा है, ये बिल्कुल मेरे जैसा है। अरे किस तरह हम लोग ना एक दूसरे को जानते हैं ना पहचानते हैं, अलग अलग प्रोफेशन से आए हैं, यहाँ पे मिल गए हैं, रिलेशनशिप बिल्ड हो रहे हैं, हमारे अंदर पावर आ रही है, स्ट्रेंथ आ रही है, हमारा जीवन डिसिप्लिन्ड हो रहा है, फाइनेंशियल फ्रीडम मिल रही है। रोज जाते हैं जॉब पे, वापस आते हैं, टाइम देते हैं, पैसा आता है, टाइम देते हैं, पैसा आता है। जिस दिन टाइम देना बंद हो गया, पैसा आना बंद हो जाएगा। और कोई बिजनेस ऐसा नहीं सिवाय रॉयल्टी जहां से आती हो, जहां आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है। इस फाइनेंशियल फ्रीडम का मजा ही कुछ अलग। कहते हैं फ्रीडम दे दो, बाकी सब कुछ ले लो चाहे। नॉट हेल्थ बट ऑप्टिमल हेल्थ। कैसी हेल्थ मिलेगी? पूर्ण हेल्थ। ऑप्टिमल हेल्थ का मतलब क्या? आपकी पॉजिटिव थिंकिंग होगी, बॉडी भी फिट होगी, आपके एटीट्यूड में परिवर्तन आ जाएगा, चेंज आ जाएगी। योर लाइफ, इंटायर लाइफ विल चेंज। आपके रिलेशनशिप चेंज होने शुरू हो जाएंगे, आप में लीडरशिप की क्वालिटीज आ जाएंगे, रिकॉग्निशंस मिलेंगे। इसके लिए दुनिया रोती है। कहते हैं कि रिकॉग्निशन इज समथिंग चिल्ड्रन क्राई फॉर एंड एल्डर्स डाई फॉर। फॉरेन ट्रिप्स मिलते हैं, आप में से कई बैठे होंगे 60 ट्रिप्स ले चुके होंगे। क्या मजा आता है, क्या आनंद आता है उनमें। इस बिजनेस की पावर ही कुछ और है। ये बिजनेस आपका पूरा ही शिफ्ट कर देता है, पूरा आपकी लाइफ को ही चेंज कर देता है। न केवल आपको ये फाइनेंशियल फ्रीडम देता है, आपको अच्छी हेल्थ देता है, ऑप्टिमल हेल्थ देता है, आपको लीडरशिप की क्वालिटीज दे जाता है, रिकॉग्निशन मिलती है। और क्या चाहिए? इससे अच्छा और दुनिया में कोई बिजनेस हो नहीं सकता। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। And now what you have to do is you have just to approach other people and tell all this to them, that you can gain all this from this business. You have to adopt highest work ethics. अपने ग्रुप में कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, कोई नेगेटिविटी ना हो, कोई क्रॉस लाइनिंग ना हो, ये देखना पड़ेगा। और किसका रोल अदा करना है? थर्मोमीटर नहीं बनना कि दूसरे का टेम्परेचर टेस्ट कर लूं मैं। थर्मोस्टेट, आग लगानी है ग्रुप में, जोश पैदा करना है। लीडरशिप बाय एग्जांपल होती है। मल्टीपल बर्नर चल रहे हैं, 4 बर्नर, इधर भी काम हो रहा है, उधर भी काम हो रहा है, उधर भी हो रहा है। और अपने बिजनेस में और लीडर नहीं प्रोड्यूस करेंगे तो बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। अपने तक नहीं सीमित रखना, केवल मैं ही लीडर बनूं, और बनाने हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर listening to me, for giving me patient listening, and I hope I have passed on something to you from my experience in this business, and also whatever I have learned from my life. Thank you so much. Thank you. थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर गुलशन कुमार। आज आपने जीवन की एक शिक्षा दी और सफलता कैसे पाएं। Thank you very much for sharing your thoughts, sharing your experience, sharing your knowledge. From All India Samians. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. देखिए, सपने तो होने ही चाहिए। बड़े बड़े लोग नहीं आए, कुछ लुटेरे, कुछ गुंडे, और हिंदुस्तान पर आकर के उन्होंने पहले आक्रमण किया, जो डकैत भी मान सकते हैं। उनके पास खोने को कुछ नहीं था और पाने को हिंदुस्तान था। और हम लोग क्या करते थे? लड़ाई में अपने आप को डिफेंसिव बचा लें। अगर कुछ पाना है जिंदगी में तो यू हैव टू बी ऑफेंसिव। ये सामी के मतवाले बड़े अजीब हैं।
अपने सपने भरे। मैं एक वीडियो के थ्रू दिखाना चाहता हूं हमारे सामियन क्या है, इनमें क्या ताकत है। ये अपनी